تاہم گروداس اور شینا نے بھی بعد میں ان کا مقابلہ کیا تھا اور بوتھم اور جولی کو ہلاک کر کے اپنے منہ کا چھینا ہوا نوالا ان سے واپس لے لیا تھا۔ گویا اب آگے کسی بھی مقام پر ایک زبردست مارکا ان کے درمیان متوقع تھا۔ اس سے پہلے میں مجسمے کو ہتھیا لینا چاہتا تھا، اس طرح کہ نہ وہ ان کے پاس رہے اور نہ ہی صحرائی عقاب والوں کے قبضے میں جا سکے، کیونکہ کالی لہر والوں کے لیے مجسمہ کتنی اہمیت کا حامل تھا مجھے اس کا اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا۔ اب میں نے کیا کرنا تھا اس کا لاہے عمل میں پہلے ہی ترتیب دے چکا تھا۔ ڈیوائس چھپا کر میں وہیں کونے میں لیٹ گیا۔ دھوپ کی چبھن سے میری آنکھ کھلی، صبح ہو چکی تھی، بلکہ پوری طرح دن نکلا ہوا تھا۔ بوٹ مجھے رکی ہوئی محسوس ہوئی کیونکہ اس کا انجن بند تھا، البتہ پانی کی جلترنگ سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ رات سوتے میں خیریت گزری اور کسی کی نظر مجھ پر نہیں پڑی۔ میں محتاط انداز میں آہستہ آہستہ اٹھا۔ بہت سہانا موسم اور دل فریب منظر میری نظروں کے سامنے تھا۔ بوٹ دریا کے کنارے لنگر انداز تھی، اس طرف جنگلی گھاس کا ڈھلوانی میدان اور درختوں کا جنگل سا تھا۔ درخت اور اس کی شاخیں کئی فٹ دریا کی جانب جھکی پانی کی سطح کو بوسہ دے رہی تھیں۔ دوسرے کنارے پر مجھے گھاس اور درختوں پر تھوڑی بہت برف کی جھلک نظر آئی۔ سردی پڑنے لگی تھی، اوپر نیلے کھلے آسمان پر بادل کے سفید ٹکڑے تیرتے نظر آئے۔ میں نے اپنی جیکٹ کے کالر اونچے کیے اور بٹن بند کر دیے۔ مجھے بھوک اور پیاس ستانے لگی تھی، ہلکی سردی بھی تھی۔ دفعتاً ہلکا سا شور میرے کانوں سے ٹکرایا۔ دیکھا شینا اور گروداس اس دریا کے پانی میں نہا رہے تھے اور چہل کرنے میں مصروف تھے۔ کنارے پر سمورا نے آگ جلا رکھی تھی، وہ کچھ کھانے پینے کی چیز بنانے میں مصروف تھا۔ اس نے 3-4 موٹے تازے جنگلی خرگوش شکار کر لیے تھے۔ انہیں مصروف پا کر میں دبے پاؤں کیبن کی طرف بڑھا، وہیں مجھے تھوڑا بہت کھانے پینے کو مل سکتا تھا۔ قریب پہنچا تو کیبن کا داخلی دروازہ تھوڑا بھیڑا ہوا تھا۔ میں اسے آہستہ سے دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ کیبن قدرے کشادہ اور آرام دہ تھا۔ وسط میں گرم بستر تھا، دائیں جانب ایک میز اور 2 کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ ایک الماری تھی، دریا کی جانب کھلنے والی کھڑکی گول اور خشکی کی جانب چوکور کھڑکی تھی۔ ایک شیلف بھی نظر آئی، اس کے اندر زیادہ تر وائن باٹلز رکھی تھیں، تاہم مجھے لیکوڈ فوڈ کے کچھ سیل پیک ڈبے بھی نظر آ گئے۔ پانی بھی رکھا تھا، میں نے سب سے پہلے پانی پیا، اس کے بعد کیبنٹ سے فوڈ کے 2 ڈبے نکالے۔ نائف کٹر مجھے میز کی دراز سے مل گیا تھا، اندر جوس اور فروٹ کے قطلے تھے۔ میں نے جلدی جلدی دونوں ڈبوں پر ہاتھ صاف کیا۔ میرا نہیں خیال تھا کہ ان 2 ڈبوں کے غیاب پر کوئی چونکتا، تاہم خالی کین میں نے وہاں نہیں پھینکے اور جیکٹ کی جیب میں ڈال لیے کہ بعد میں موقع دیکھ کر پانی میں پھینک دوں گا۔ اس کے بعد میں نے تھوڑا باہر جھانکا، وہ سب مصروف تھے۔ میں نے کیبن کی جلدی جلدی تلاشی لی، لیکن بمبورگا کا مجسمہ مجھے وہاں نہیں ملا۔ یہ ممکن تھا اسے کہیں اور چھپا رکھا گیا ہو۔ اچانک ایک آواز پر میں چونک پڑا، بدک کر کھڑکی کی طرف گیا اور سن ہو کر رہ گیا۔ شینا اور گروداس اس پانی میں بھیگے ہوئے کیبن کی طرف آ رہے تھے۔ میرے پاس مہلت نہیں رہی تھی کہ میں کیبن سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا، لہذا جلدی سے ادھر ادھر دیکھا اور الماری کے پیچھے چلا گیا۔ اس کے لیے مجھے الماری تھوڑی سی آگے کی طرف دھکیلنی پڑی تھی تاکہ اس کے عقب میں اپنے لیے جگہ بنا سکوں، لیکن وہ میری دراز کامتی سے کم تھی، اسی لیے مجھے تھوڑا جھک کر اس کے عقب میں ٹکنا پڑا تھا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ گروداس کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے شینا کو وائن تیار کرنے کا کہا۔ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اسی اثنا میں سمورا نے انہیں آواز دی، شاید کھانا تیار ہو چکا تھا۔ وہ دونوں نکل گئے۔ میں نے بھی اطمینان کی سانس لی اور موقع تاک کر کیبن سے باہر آ گیا۔ دنبالے پر آ کر میں کچھ سوچنے لگا۔ یہ لوگ کنارے پر اب کھانے پینے میں مشغول ہو چکے تھے۔ میں نے تیزی سے بوٹ کا معائنہ شروع کر دیا۔ مجسمہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا، حتیٰ کہ وہیل روم کے قریب ایک کونے میں بنے سٹور روم کو بھی دیکھ لیا۔ وہاں مجھے ایک کرولی پڑی نظر آئی۔ کچھ سوچ کر میں نے وہ اٹھائی اور اپنے جوتے میں اڑس لی۔ تبھی اچانک مجھے بوائلر روم کا خیال آیا۔ پہلے تو سوچا ادھر بھلا کوئلوں اور لکڑی کے ٹکڑوں کے سوا کیا مل سکتا تھا، لیکن دل نے کہا کہ تلاشی کی یہ حسرت بھی پوری کر لینی چاہیے۔ میں بوائلر روم میں آ گیا۔ یہاں کا ماحول خاصا گرم تھا، گرمی میں تو یہ جہنم ہی کا نظارہ پیش کرتا ہوگا۔ میں ادھر ادھر تاکنے لگا کہ اچانک دیکھا میرے بائیں جانب ایک راہداری سی تھی۔ میں اس طرف چلا گیا۔ وہ مختصر تھی، راہداری کے اختتام پر سپاٹ دیوار تھی اور وہیں مجھے ایک انتہائی مکروہ اور منحوس سی شہر رکھی ہوئی دکھائی دے گئی۔ اس پر سیاہ رنگ کا موٹا کپڑا تھا، وہ میں نے ہٹا دیا۔ بمشکل 4 فٹ کا وہ مجسمہ بمبورگا ہی کا ہو سکتا تھا، بالکل سیاہ اور بیٹھنے کی حالت میں تھا۔ اس کا سر مخروطی اور شکل انتہائی بدصورت تھی۔ تنگ پیشانی پر فقط ایک ہی آنکھ تھی جو کھلی ہوئی مجھے گھورتی محسوس ہوئی۔ موٹی سی ناک کے نتنے کھلے ہوئے اور اٹھے ہوئے تھے، بازو غائب تھے، ٹانگیں سکڑی ہوئی، کمر کی جانب بڑا سا کب نکلا ہوا تھا اور بھی بدوضع قسم کے عجیب نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ رنگت ساری سیاہ تھی،
इसे शरूपा कबीले का देवता समझा जाता था और मेरी मालूमात के मुताबिक वो मिस्र के म्यूजियम और फिर पेरिस से चुराया गया था और अब मेरे सामने था। बिलाशुबा नवादरात में इसकी अहमियत मुस्तनद हो सकती थी। मैं थोड़ी देर तक इसका जायजा लेता रहा और पुरसोच अंदाज में होंठ नीचे इसके सामने खड़ा रहा। ये तसल्ली होने के बाद कि बम्बोरगा का मुजस्समा इधर मौजूद था, मैं बॉयलर रूम से निकल आया। पहले मेरे जहन में आया कि अपने तयशुदा मंसूबे के मुताबिक एक मरहले को बखूबी अंजाम तक पहुंचा दूं, यानी खामोशी से ये मुजस्समा किसी तरह उठाकर जंगल में कहीं खुफिया जगह पर छुपा दूं। लेकिन अभी मुझे ये सब अपने मंसूबे से बाइद तरीन नजर आया। रास्ते में किसी भी वक्त अगर मुजस्समे की तलाश शुरू हो जाती तो इनका पीली घाट की जानिब सफर मुअख्खर हो सकता था, जो कम अज कम मैं हरगिज नहीं चाहता था। मैंने किनारे पर देखा, गुरुदास और शीना खा पी कर वहीं किनारे पर मौजूद हरी हरी घास पर लेट गए थे, जबकि समोरा बोट की जानिब बढ़ रहा था। बोट में आकर उसने सीधा बॉयलर रूम का रुख किया। वहां थोड़ी देर तक वो मौजूद रहा। इसके बाद ऊपर आया और वाहिल रूम का रुख कर लिया। थोड़ी देर बाद ही फिट फिट की मखसूस आवाज उभरी और साथ ही बोट की चिमनी से धुआं निकलना शुरू हो गया। लंगर अभी नहीं उठाया गया था, गोया ये लोग रवानगी के लिए तैयार थे। इंजन स्टार्ट करके समोरा दोबारा वहील रूम से नमदार हुआ और रेलिंग के करीब जाकर अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके हिलाने लगा। दरिया के किनारे घास पर बैठे शीना और गुरुदास उठ खड़े हुए। बाकी सामान समोरा उठा लाया था। इन्होंने भी अपना मुख्तसर बोरिया बिस्तर उठाया और किनारे किनारे टिकते वो बोट में आ गए। अभी उन्होंने अपने कैबिन का रुख नहीं किया था। अलबत्ता इन दोनों के बोट में सवार होते ही समोरा ने दोबारा रूम का रुख किया। फिर इसके जरा देर बाद ही फिट फिट तेज होने लगी। साथ ही बोट ने भी हरकत शुरू कर दी। दरिया का पाट कहीं बहुत खुला और कहीं तंग हो जाता। दो रोया किनारों पर जंगल, झाड़ियां और दरख्तों की बहुतात थी। फकत दूसरे किनारे जंगल पार बर्फ पोश चोटियों की झलक नजर आती रहती। सफर अभी बज़ाहिर पुरसकून मगर अंदेशों भरा जारी था कि चंद मिनट बाद अचानक बोट को एक जबरदस्त झटका लगा। मैं बुरी तरह गड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ कि देखूं तो सही कि आखिर मुआजरा क्या है। शीना और गुरुदास, जो कि थोड़ी देर पहले कैबिन में जा चुके थे, बोट को झटका लगने के बाद दोबारा बाहर दौड़ते हुए आए थे। समोरा को मैंने लपक कर वहील रूम से निकलते देखा तो चौंक पड़ा। उसके हाथ में एरो शूटर गन थी। वो उसे संभालते हुए तेजी से बोट के दाएं जाने बढ़ा। साथ ही उसने चिल्लाते हुए इन दोनों से कुछ कहा भी था जो मैं समझ नहीं सका। तहाँ मैंने देखा कि शीना और गुरुदास फौरन कैबिन की जानिब लपके और जब बाहर आए तो इन दोनों के हाथों में ताकतवर राइफलें थी। मैं चौंक पड़ा। समोरा ने यकीनन वही रूम से दरिया में कुछ देखा था या उसे बोट को जबरदस्त धचका लगने की वजह मालूम थी। मैं खुद अभी मां सिवाय तमाशा देखने के और कुछ नहीं कर सकता था। मेरे पास रामू का लोडेड पिस्तौल था। फिजा में यके बाद दीगरे दो फायर हुए। शायशीना और गुरुदास की राइफलें गरजी थीं। फिर दफातन मेरे बाएं जानिब दरिया में एक जबरदस्त हलचल और शोर की कैफियत पैदा हुई। साथ ही बोट को दोबारा झटका लगा। इस बार बोट बुरी तरह हिल गई थी, बल्कि यूं लगा जैसे उलटने ही वाली हो। बोट का एक हिस्सा अच्छा खासा ऊपर की तरफ उठ गया था, जिसके नतीजे में मेरे पांव उखड़ गए। मैं फिजा में चंद इंच उछलकर दुम्बाले की दाएं जाने वाली दीवार से जा टकराया और गिर गया। शुक्र था कि पानी में नहीं जा पड़ा। न जाने कौन सी दरियाई बला ने बोट पर हमला कर दिया था, क्योंकि इस बार मुझे पानी के शोर तले एक बड़ी खूंखार खैवानी आवाज भी सुनाई दी थी, मगरमच्छ। यही एक लफ्ज मौका और माहल से मेरे जहन में उभरा था और मैं दहल कर रह गया। जाहिर है दरिया में यही एक बड़ी बला हो सकती थी। समंदर तो था नहीं कि कोई बड़ी वहील या शार्क हल्ला बोलती। मैंने खुद को संभाला तो इसी वक्त दोबारा मुझे फायरिंग की आवाज सुनाई दी। फायरिंग शीना और गुरुदास कर रहे थे, लेकिन जरा ही देर बाद समोरा हल्क के बल चिल्लाया। साथ ही जोरदार छपाके की आवाज उभरी। मेरे लिए अब हालात का जायजा लेना जरूरी हो गया था। सारी एहतियात बालाए ताक रखकर मैंने रेलिंग से उस तरफ उठकर देखा जहां यह कयामत मची हुई थी। तो एक दिल दहला देने वाला मंजर मेरा मुंतजिर था। समोरा को मैंने दरिया में तड़पते और एक जसीम मगरमच्छ के भयानक जबड़ों में फंसे पाया। एरो शूटर गन उसके हाथ से निकल चुका था। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। शीना और गुरुदास बोट पर दो मुख्तलिफ सिमतों पर टिककर पोजीशनें संभालने की सही करते हुए खूनी मगरमच्छ पर गोलियां बरसाने लगे। हमारे देखते ही देखते मगरमच्छ समोरा को अपने नुकीले दांतों तले दो टुकड़ों में तकसीम कर चुका था। शीना और गुरुदास की गोलियां उसकी मोटी, चिकनी और खुरदरी बदहेत खाल पर कोई असर नहीं कर रही थी। समोरा को हड़प करने के बाद मगरमच्छ पानी के अंदर गायब हो गया। एकदम कयामत सी हलचल रुक गई, मगर यह खामोशी किसी बड़े तूफान का पता देती हुई महसूस हुई। थोड़ी देर तक इस जदा आबी माहौल पर गहरा सकूत तारी रहा। यूं लगा जैसे किसी और अनहोनी के होने के हम सब मुंतजिर हूं, और वो ही हुआ। इसी वक्त गुरुदास चिल्लाया, बोट में पानी भर रहा है, शीना इधर आओ। मैंने जरा इनके करीब सिरक कर देखा और दंग रह गया।
बोट कैबिन की तरफ वाली रेलिंग से टूट चुकी थी। ये उस जसीम और खूनी मगरमच्छ की जबरदस्त टक्करों का ही नतीजा हो सकता था। वहां से पानी तेजी से बोट में भर रहा था। वो एक जानिब झुकती जा रही थी। शीना और गुरदास अपनी गन्ने एक तरफ फेंक कर बाल्टियां उठाने के लिए लपके और भर भर कर दरिया में पानी फेंकने लगे। ऐसे कुछ नहीं होगा। जरा देर बाद शीना ने हाँफते हुए कहा, हमें इस टूटे हुए हिस्से का भी कुछ करना पड़ेगा। तुम पानी निकालती रहो, मैं कुछ करता हूँ, गुरदास ने कहा और फिर वापस पलटा। वो दौड़कर वही रूम और कैबिन के दरमियान बने बड़े से स्टोर में जा घुसा और वहां से वो न जाने किस शय से भरी हुई बोरियां लाद कर लाने लगा और टूटे हुए हिस्से में जमा कर रखता रहा। पानी आना बिल्कुल तो बंद न हुआ, तहम इसमें कमी जरूर वाक़ हो गई थी। यूं अब एक तरफ को झुकती हुई बोट दोबारा अपनी सतह पर आने लगी। गुरुदास इधर उधर जाकर बोट का जायजा लेता रहा। इसके बाद शीना से बोला, बोट हमें किनारे पर ले जाना पड़ेगी। क्यों? शीना ने पूछा। मगरमच्छ की टकरों ने इसे नुकसान पहुंचा दिया है। थोड़ी बहुत मुरम्मत के बगैर हम आगे इतना तवील सफर नहीं कर पाएंगे। शीना चुप हो गई। बोट को किनारे पर ले जाकर लंगर डाल दिया गया और साथ ही एक मोटे रस्से की मदद से एक बड़े और मजबूत तने वाले दरख्त से बांध भी दिया गया। वो दोनों किनारे पर उतर आए। मैं बोट के अंदर ही था। बोट पानी की सतह पर हलकोरे ले रही थी। अभी मैं यही सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए कि अचानक बोट जोर से हिली। मैं बुरी तरह गड़बड़ा गया। अगले हिले में ऐसा लगा जैसे बोट को किसी जबरदस्त कुव्वत ने धकेलने के अंदाज में टक्कर मारी है। मुझे भी जोरदार झटका लगा और मैं अंदर ही गिर पड़ा। उठा तो ये देखकर दंग रह गया कि बोट निस्फ से ज्यादा किनारे पर जा घुसी थी। फिर यही वो वक्त था जब मुझे पानी से अपनी जानिब एक जोरदार हैवानी आवाज सुनाई दी। बोट के जिस हिस्से पर मैं था वो अभी कुछ पानी ही में था। मैंने बुरी तरह हड़बड़ाकर इस तरफ देखा और जो शय मुझे नजर आई उसने मेरे औसान खता कर दिखे। मुझे एतराफ था कि इस कदर तवाना और जसीम मगरमच्छ मैंने आज तक अपनी जिंदगी में तो नहीं, अलबत्ता किसी फैंटेसी मूवी में जरूर देखा था। जिधर मैं छुप कर खड़ा था उस तरफ रेलिंग के नीचे ही पानी की सतह पर मैंने उस खूनी मगरमच्छ को उबरते देखा। वो कमबख्त बड़े सुकून आवर अंदाज में नजर आया या फिर दूसरे किसी हमले के लिए परतोल रहा था। इसका खौफनाक जबड़ा बहुत भयानक था। ये तसव्वुर करना कि समोरा का इस नुकीले दांतों वाले जबड़े ने क्या हशर किया होगा लर्जात देने वाला ही था। तो अपने पूरे जिस्म के साथ पानी की सतह पर उभरा हुआ था और उसके खुरदरे बदहेज से मोटी खाल वाले जिस्म पर खमदार और उभरवा खाने ऐसे ही महसूस हो रहे थे जैसे तेज छुरे हों। इसकी दुम बहुत मोटी और तेजी से हरकत करती नजर आ रही थी। मुझे डर लगा कि कहीं दोबारा ये बोट को ठोकर मार कर किनारे पर ही उल्टा न कर दे और फिर मेरा क्या हशर होगा। इसने जबड़ों के ऊपर अपनी उबरवान डेलों वाली आंखों को हरकत दी और फिर गड़ाप से पानी के अंदर गायब हो गया। बिलाशुबा किसी शिकारी के लिए यह मगरमच्छ बहुत शानदार हो सकता था जिसका शिकार करने के बाद वो फख्र महसूस करता। मैंने सुन रखा था कि भारत समेत अफ्रीका और ब्राजील के जंगलाती आबी इलाकों में ऐसे अजीमुल जुस्सा मगरमच्छों को देवता का दर्जा दिया जाता है। ये वाकई किसी देवमालाई या तस्वुराती दास्तानों का कोई देवता टाइप का मगरमच्छ ही था। इस अजीमुल शान मगरमच्छ की टक्कर से बोट किनारे पर आ जाने के सबब अब बिल्कुल साकित हो गई थी। मैं हनूज अंदर ही छुपा रहा। इसके बाद झुका झुका चलता हुआ दूसरी तरफ आया जहां का बेशतर हिस्सा किनारे पर आ चुका था। वहां से बड़ी एहतियात के साथ अपना सर जरा उभार कर देखा तो किनारे पर घास में खड़े शीना और गुरुदास फिक्रमंद नजर आ रहे थे। मैंने अभी कुछ सोचकर बोट से बाहर या किनारे पर आने का अपना इरादा तर्क कर दिया। उफ भगवान, मैंने अपनी सारी जिंदगी में इतना बड़ा और खतरनाक मगरमच्छ नहीं देखा। मैं तो दहशत ज़दा हो गया हूं। गुरुदास झुरझुरी लेकर शीना से कह रहा था, मैं समोरा का बदला जरूर लूंगी, मैं इस मूजी को हला करूंगी। शीना ने बिफरे हुए लहजे में कहा। मैंने दुम्बाली की दीवार से जरसर उभार कर देखा। शीना का हसीन चेहरा तांबे की तरह चमक रहा था और पुरशबाब बदन इस सांच में जैसे दहकता दिखाई दिया। इसकी बड़ी बड़ी गहरी काली आंखें गजब की चमक निछावर करती रहीं। उसने राइफल हनूज अपने हाथ में पकड़ रखी थी। बेवकूफी की बातें मत करो शीना, गुरुदास ने कहा। वो महज एक दरिंदा था, इसकी चिंता छोड़ो और अपनी फिक्र करो। हम सिर्फ 2 रह गए हैं। मुकद्दस बुम्बोरगा की अमानत हमारे साथ है और मंजिल से हम अभी बहुत दूर भी हैं। अभी कश्ती की मुरम्मत का काम भी बाकी है। गुरुदास के फिक्र तशवीश दिलाने पर शीना चुप होकर रह गई। ये सच भी था कि ये लोग 5-6 से अब सिर्फ 2 रह गए थे, जबकि अहम मिशन इनका अभी अधूरा था। शीना ने जला कर राइफल घास पर फेंकी तो गुरुदास इसके करीब आ गया और बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में उसे खुद से चिमटाने की कोशिश की तो शीना उसे परेड धकेल कर दूर एक दरख्त तले जा खड़ी हुई। उसका मूड बहुत बुरी तरह खराब हो चुका था। उसने गुरुदास को भी धुतकार दिया था और दरिया के बज़ाहिर पुरसकून पानियों की तरफ तकती जा रही थी। दिन का सफर दोपहर और फिर उतरती शाम तक चला
तो गुरुदास और शीना ने मिलकर किसी हद तक कश्ती की मुरम्मत का काम निपटा लिया। वो थक कर इस कदर चूर हो गए थे कि निढाल होकर वहीं घास पर लेट गए। माहौल पर अब यकायक गहरा सकूत छा गया था। शाम के पंछी अपने घोंसलों में लौट आए थे और जैसे खामोश दुबक कर रह गए हों। पानी की जलतरंग जारी थी। दरिया के दोनों तरफ के जंगल में अंधेरे उतरने लगे थे। बोट को दोनों ने किसी तरह मोटे मोटे रस्सों की मदद से खुश्की से पानी में धकेल दिया था। मैंने दुम्बाले की जानिब से उबर कर जरा इर्द गिर्द का जायजा लिया। किनारों पर एक नजर डालने के बाद मैंने दरिया के पानी को देखा। वो खूनी मगरमच्छ शायद हलचल मचाने के बाद तह में पड़ा आराम कर रहा था या फिर आगे निकल गया था। मुझे भूख और प्यास सताने लगी। मैंने एक बार फिर किनारे पर घास में दोनों को लेटे पाया। वो बेसुध थे। तसल्ली के बाद मैं इनके कैबिन की तरफ बढ़ा। वहां खुशखोराक के कुछ डिब्बे रखे थे। मैंने जल्दी जल्दी इन पर हाथ साफ किया। बेचारे समोरा के शिकार किए हुए जंगली खरगोशों का भी कुछ बचा कुचा गोश्त मुझे मिला। वो भी मैं चट कर गया। बियर और विस्की की बोतल रखी थी। मैंने इन्हें छुए बगैर पानी की बोतल उठा ली। भूख प्यास से मैं पागल सा हुआ जा रहा था। वजह यही थी कि मुझे खुलकर खाने पीने को नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए इस बार मैंने तमाम एहतियात बालाए ताक रख दी कि इन्हें खुराक की चोरी का शुबा होता है तो होता रहे। मैं कैबिन से बाहर आया और यूं ही मेरी नजर जब किनारे पर पड़ी तो यकलक जैसे मुझे सकता हो गया। इस कमबख्त मूजी की दहशत ही ऐसी थी। उसी जसीम और खूनी मगरमच्छ को मैंने दरिया के किनारे से उबर कर नहायत आहिस्तगी से उन दोनों सोए हुए अफराद की तरफ बढ़ते देखा। नीम तारीकी में उसका मोटा ताजा सेहतमंद जिस्म चमक रहा था। वो मगरमच्छ खूनखार ही नहीं बल्कि मक्कार भी था। वो शायद भूखा होने के सबब आदमखोरी पर मायल हो गया था। समोरा को हड़प करने के बाद से इसे शायद शिकार की बू आती रही थी। मैंने होंठ भींच लिए। गुरुदास और शीना बेखबर सो रहे थे। अपनी जानी बढ़ते हुए खतरे का इन्हें बिल्कुल एहसास नहीं था कि भयानक मौत इनकी जानिब बढ़ती चली आ रही थी। इन दोनों का अभी जिंदा रहना मेरे लिए बहुत जरूरी था। मगर मेरा मसला ये था कि मैं खुद को जाहिर नहीं करना चाहता था। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था और मैंने इनकी मदद करने का फैसला कर लिया और लपका। मुझे शायद फैसला करने में थोड़ी देर हो गई थी क्योंकि इसी वक्त इस खूनी मगरमच्छ ने सोए हुए गुरुदास की टांग अपने भयानक नुकीले शिकारी दांतों वाले जबड़े में दबोच ली थी। वो एकदम हड़बड़ा कर उठा। शीना उसके करीब ही पड़ी बेसुध सो रही थी। मगरमच्छ ने लपक कर गुरुदास की टांग अपने जबड़ों में इस जोर से दबोचकर उसे जोरदार झटका दिया कि इसकी टांग घुटने की तरफ से कट गई और वो जरा दूर जा पड़ा। गुरुदास के हल्के से लर्जा खेज चीखें बरामद हो रही थी। शीना की आंख खुल गई। एक लम्हे को तो वो ये दिल दहला देने वाला मंजर देख कर ही हक्का बक्का रह गई थी। मगरमच्छ दोबारा गुरुदास की जानिब लपका जो अपनी ही हालत और उस मगरमच्छ को देखकर हवास बाख्ता हो गया था। वो घास पर घिसट कर दूर निकल जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मगरमच्छ दोबारा तेजी से उसकी जानिब लपका और आने वाहिद में उसे दोबारा जा लिया। शीना बोट की जानिब तोड़ी। वो शायद वहां से कोई हथियार उठाने के लिए दौड़ी थी। कम से कम अब मेरे लिए करने को कुछ बाकी नहीं बचा था। गुरुदास अपने भयानक अंजाम से दो चार रहा। शीना जब तक बोट में आई, मगरमच्छ गुरुदास की दूसरी टांग भी चबा चुका था। इसके बाद उसने बाकी मादा जिस्म को भी जबड़ों में दबोचा और पानी की जानिब जाने लगा।